Reading Sea Hamaguchi. Along the sea coast in Japan, earthquakes are sometimes followed by terrible tidal waves called tsunami. This wonderful story of sacrifice and alertness tells of such a tidal waves that struck a small village in Japan. जापान में समुद्र तट के आसपास भूकंप कभी-कभी भयानक समुद्री लहरों द्वारा पीछा करते थे, जिसे सुनामी कहा जाता था। यह कुर्बानी और सतर्कता की खूबसूरत कहानी बताता है। एक ऐसे ही ज्वार-भाटा की लहरें जो कि जापान में एक छोटे से गांव में टकराई। Long ago, an old man whose name was Hamaguchi lived in a village in Japan. His farmhouse stood on the edge of a plateau, a flat open space high up on the side of a mountain. Behind his house, the mountain stood still higher and full of dense forest. In front, it sloped gently down to the sea. At the foot of the mountain, along the shore, was the little village made up of about 100 thatched houses. A little apart from them stood the temple. बहुत पहले एक बूढ़ा व्यक्ति जिसका नाम हमागुची था, जापान में एक गांव में रहता था, जिसका फार्म हाउस एक ऊंचे खुले स्थान पर्वत के नीचे पठार के शिखर पर था। उसके घर के पीछे ऊंचा पर्वत खड़ा था और एकदम घना जंगल था। सामने यह धीरे धीरे समुद्र की ओर ढलान लिए था। पर्वत के नीचे किनारे पर लगभग 100 छप्पर के बने घर वाला छोटा एक गांव था। उसके एक छोटे हिस्से में मंदिर था। One afternoon, Hamaguchi sat with his grandson on the balcony of his house, watching the people of the village below enjoying the harvest festival. The rice crops had been very good and the villagers were very happy. All the shops and houses were gaily decorated with paper lanterns. The villagers, wearing bright colored clothes, were about to start the harvest dance. एक दोपहर हमागुची अपने पोते के साथ अपने घर के छज्जा बरामदा पर बैठा था, यह देखते हुए कि नीचे गांव के लोग फसल कटाई का उत्सव मना रहे थे। धान की पैदावार बहुत अच्छी हुई थी और ग्रामीण बहुत खुश थे। सभी दुकान और घर रंगीन कागजी दीपकों से दिए से सजाए गए थे। गांव के लोग फसल कटाई के नृत्य के लिए चमकीले रंगीन कपड़े पहने हुए थे। From his balcony, Hamaguchi could see the vast sea curling over waves in the bright afternoon sun. Suddenly, Hamaguchi felt a slight movement. The house rocked 3 or 4 times and then stood still. Hamaguchi had seen many earthquakes in his life and he was not frightened at all until he looked towards the sea. अपनी बालकनी से हमागुची ने दोपहर चमचमाती धूप में विशाल सागर की लहरें जो ऊपर घूमर रही थी उसको देखा। अचानक हमागुची ने थोड़ा हलचल महसूस किया। घर 3 या 4 बार हिला फिर शांत हो गया। हमागुची अपने जीवन में कई भूकंप देखे थे और वह इस सबसे भयभीत नहीं था, डरा हुआ नहीं था जब तक वह समुद्र की ओर नहीं देखा था। The sea had become a menacing dark green and very rough. The tide had changed all of sudden. Instead of the waves rolling onto the beach, the water was now running away from the beach. The villagers stopped dancing and ran towards the seashore to see more of peculiar and strange sight. None of them knew what these strange things meant. But the old man on the mountainside had seen one such sight when he was a little boy. He knew what the sea would do. There was no time to send a message to the village, nor to ring the bell in the temple.
and yet he knew that the people on the seashore had to be warned. समुद्र डराने वाला, गहरा हरा हो चुका था और बहुत भयानक हो चुका था। ज्वार भाटा की लहरें परिवर्तित हो गई थी। लहरें समुद्र किनारे तक चलने के बजाय पानी अब समुद्र किनारे से बाहर आने लगी थी। ग्रामीणों ने नाचना बंद किया और समुद्र की ओर दौड़े उस अनोखे और विचित्र दृश्य को देखने के लिए। कोई नहीं जानता था कि इस अनोखी चीज का मतलब क्या था, किंतु पर्वत के बाजू में रहने वाला बूढ़ा व्यक्ति मीन्स यामागुची कुछ ऐसा दृश्य देख चुका था जब वह छोटा बच्चा था। वह जान गया था कि समुद्र क्या करेगा। गांव में संदेश भेजने का समय नहीं था उसके पास और न ही मंदिर में घंटी बजाने का। फिर भी वह जानता था कि लोगों को चेतावनी देना आवश्यक है। गांव में जब कोई संकट आता था तो वहाँ पर एक नियम था कि गांव के मंदिर की घंटा बजाया जाता था ताकि लोग उसकी मदद करने के लिए जा सके। योन ही कॉल्ड हिज ग्रैंडसन, लाइट अ टॉर्च क्विक। उसने अपने ग्रैंडसन को आवाज़ दिया, योन मशाल जलाओ जल्दी। द यंग बॉय वॉज पजल्ड बट ही आस्क्ड नो क्वेश्चंस। He lit the torch at once. The old man ran to the fields where hundreds of rice sacks were stacked. He ran from one sack to another, applying the applying the torch to each. The dry sacks caught fire quickly. Soon the flames were shooting upwards and the smoke was rising in great columns to join the clouds in the sky. योन उलझन में था किंतु वह कोई प्रश्न नहीं पूछा। वह तुरंत एक मशाल जलाया। हमागुची मशाल को लेकर खेतों की ओर दौड़ा जहां सैकड़ों धान के ढेर रखे थे। वह प्रत्येक को आग लगाता हुआ एक ढेर से दूसरी ढेर की ओर दौड़ा। सूखे ढेर पर जल्दी आग पकड़ लिया और जल्द ही आग की लपटें ऊपर उठ गई और धुएं बड़े बड़े कॉलम के रूप में आकाश की ओर उठने लगा। योन ran after his grandfather, shouting and crying, "Grandfather, why are you setting fire to the rice?" योन अपने दादाजी के पीछे आवाज लगाते हुए और चिल्लाते हुए दौड़ा, दादाजी आप धान को क्यों आग लगा रहे हो? The old man had no time to answer. He just kept putting one stake after another on fire. The strong wind carried the sparks further and further till the whole field was ablaze. हमागुची के पास उसका योन का प्रश्न का जवाब देने का समय नहीं था। वह अब भी एक धान के ढेर से दूसरे धान के ढेर आग लगा रहा था। तेज हवा चिंगारी को दूर दूर तक ले गई और जब तक पूरा खेत जलने लगा। The priest in the temple saw the fire and started ringing the big bell. The people turned from the sea to see why the bell was ringing all of a sudden. मंदिर के पुजारी ने आग को देखा और उन्होंने घंटी बजाना शुरू कर दिया। लोग समुद्र के पास थे, वहां से वापस लौटे यह देखने के लिए कि पुजारी घंटी क्यों बजा रहा है। In Japan, it is the duty of everyone in the village to help when there is a fire. No sooner did the people see Hamaguchi's stacks of rice on fire that they ran towards his fields like an army of ants. Young men and boys, women and girls, old folks, mothers with babies on their backs, even little children, they all climbed the mountain to join the race to put out the fire. जापान में उस गांव में प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य था कि सहायता करे जब वहां आग लगी हो। लोगों ने देखा कि हमागुची के धान के ढेर पर आग लगी है। वे चींटियों की सेना के समान उसके खेतों की ओर दौड़े। युवा व्यक्ति और लड़के, महिलाएं और लड़कियां, बूढ़े लोग, माताएं बच्चों के साथ
यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी वे सभी पर्वत पर चढ़ने लगे आग बुझाने के लिए। But by the time they reached the plateau, it was already too late. The flames had destroyed the entire harvest and turned everything to ash. It is too bad, the people exclaimed. How did this happen? Grandfather did it, cried the young boy. He lit each stick of rice he has gone mad. किंतु लोगों के पहुंचने के पहले ही सब देर हो गई थी। पूरी हमागुची का खेत जलकर राख हो गया था और बर्बाद हो चुकी थी। सब कुछ राख में बदल गया था। यह बहुत ही बुरा हुआ। लोगों ने आश्चर्य से दुख व्यक्त करते हुए बोले, यह कैसे हुआ? तब योन ने चिल्लाया, ये सब दादाजी ने किया है। उसने धान के प्रत्येक ढेर पर आग लगाई। मेरे दादाजी पागल हो गए हैं, उन्होंने खुद आग लगाई है। The people were amazed. They couldn't believe what they had heard. They stared at Hamaguchi. You did this, they cried. You set fire to your own fields. Look towards the sea, said the old man, and you will know why I did it. The people turned and looked. Far out they saw a great wall of water sweeping towards them with great force and speed. It was the returning sea. The people shrieked, but their voices were lost in the great sound, louder than any thunder, louder than any thunder they had ever heard. As the water struck the side of the mountain, the hills shook and they were drenched in a great burst of foam. लोग आश्चर्यचकित थे। वे विश्वास नहीं कर रहे थे कि उन्होंने क्या सुना। वे हमागुची की ओर घूरकर देखे और चिल्लाए, ये सब आपने किया? आपने अपने स्वयं के खेतों में आग लगा दी? तब हमागुची बोला, समुद्र की ओर देखो, तब आप लोग जानोगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। लोग मुड़े और समुद्र की ओर देखे। दूर से वे पानी की बड़ी दीवार तेज प्रवाह और गति से अपनी ओर बहते हुए देखे। यह वापस होता हुआ समुद्र था। लोग चीखे, पर उनकी आवाज़ें उस समुद्र के ध्वनि में खो गई। किसी तूफान से भी अधिक तेज आवाज़ वे कभी नहीं सुने थे। जब पानी पर्वत के किनारे से टकराया, पहाड़ी हिल गया और वे बड़ी फुहारे के विस्फोट में भीग गए थे। When the cloud of spray had disappeared, the people saw a wild sea roaring over what was once their village. Great angry waves tumbled above the housetop, rolling, roaring, and tearing tearing off houses, trees, anything that came in its way. Great big rocks were torn away like they were pebbles being tossed around. Again the wall of water struck and again, but with less force each time. At last it fell back in its former place. जब बौछारों के बादल हट चुके थे, लोगों ने देखा कि समुद्र एक बार फिर अपने गांव के ऊपर गरजते देखा। बड़ी क्रोधित लहरें घर के ऊपर एकाएक गिर गई। आगे बढ़ते, गर्जना करते और घरों को चीरते फाड़ते, पेड़ों, कोई भी चीज जो उसके मार्ग में आ रहा था, उस सब को वो नष्ट करते। बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें समुद्र की लहरों से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गए, जैसे वे कंकड़ पत्थर इधर उधर बिखर गए हो। फिर से पानी की दीवार टकराई और फिर से प्रत्येक बार टकराई, लेकिन प्रत्येक बार उसकी जो गति और स्पीड। पीपल स्टूड स्पीचलेस लाइक स्टेच्यूज ऑन द साइड ऑफ द माउंटेन। The village was gone, the temple was no more, and the fields had been torn away. Nothing was left of their homes but a few straw roofs that floated on the water. However, precious human lives were saved on the mountainside by this timely act.
लोग पहाड़ी के किनारे गूंगे मूर्ति के समान खड़े थे। गांव तबाह हो गया था, मंदिर भी नहीं था, खेत भी टूट फूट गए थे और उनके घर पर कुछ भी नहीं बचा था, किंतु केवल कुछ घास फूस की छतें जो पानी में तैर रही थी। जैसे भी हो, इस समय पर भी हो, हमागुची के सूझबूझ से उनके जो कीमती है, मनुष्य का कीमती, लोगों का बहुमूल्य जीवन बच गया था। The people now realized why old Hamaguchi had set fire to the rice. There he stood among them, as poor as any. Full of gratitude, all these people fell on their knees to thank him. अब लोगों को समझ में आ गया था कि हमागुची ने क्यों अपने खुद के धान के ढेरों पर आग लगाई। हमागुची गांव वालों के लोगों के जीवन बचाने के लिए उन्होंने स्वयं ही अपने खेत, अपने धान के ढेरों पर आग लगाई थी। अब वो भी उन गांव वालों के समान गरीब हो गए थे। गांव वालों का घर बह गया, सब कुछ बह गया और हमागुची का सब कुछ जल गया। तो गांव वालों के साथ साथ हमागुची भी गरीब हो गया था और गांव वालों ने घुटनों के बल टेक कर हमागुची का धन्यवाद किया, क्योंकि हमागुची के कारण ही उन लोगों का जीवन बच गया। आई होप ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो हमने देखा किस प्रकार हमागुची ने निस्वार्थ भावना से घाटा मुनाफा न सोचते हुए खुद के खेतों पर, खुद के धान के ढेरों पर आग लगा के लोगों को बचाया। तो ये कुर्बानी की, ये हमागुची के कुर्बानी की बहुत ही अच्छी कहानी है। थैंक यू।